وہ صرف ایک ہفتہ اس کے گھر پر رہی تھی، پھر اسے بتائے بغیر اپنا سامان اٹھا کر حاتم قریشی کی طرف واپس آ گئی۔ اس شام وہ گھر واپس آیا تو رشا ندار تھی۔ رات تک وہ اس کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہیں آئی۔ آخر تنگ آ کر اس نے رشا کا نمبر ملا لیا۔ کہاں ہو؟ اس نے پوچھا تھا۔ گھر، رشا نے کہا۔ کون سے گھر؟ حنان نے حیرانگی سے پوچھا۔ ڈیڈ کے گھر۔ وہ بولی، مجھے بتانا نہیں تھا کہ تم وہاں جا رہی ہو؟ حنان کے لہجے میں شکوہ گھل گیا۔ میں نے ضروری نہیں سمجھا، وہ لاپرواہی سے بولی۔ واپس کب آؤ گی؟ حنان نے نہ جانے کس امید پر پوچھا تھا۔ کبھی بھی نہیں، میں اب بس ڈیڈ کی طرف ہی رہوں گی، تم بھی موج کرو، وہ مسکرا کر کہتے ہوئے کال کٹ کر گئی۔ حنان بس اپنے موبائل کی سکرین کو گھورتا رہ گیا۔ ایک بار پھر سے ان دونوں کی دوستی پروان چڑھنے لگی تھی۔ دن بدن رشا اس کی سحر امیز آنکھوں سے ہارتی جا رہی تھی۔ دن بدن اس کی قیامت خیز قربت کی وہ عادی ہوتی جا رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس نے حنان سے پیپر میرج کی ہوئی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ شیراز شادی شدہ ہے۔ وہ اس کے قریب آتی جا رہی تھی اور شیراز، وہ تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگا تھا۔ دن بدن فاقیہ اس کے لیے انتہائی غیر اہم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ صرف اس وقت اس کے قریب جاتا جب رشا کے قرب کی خواہش زور پکڑنے لگتی تھی۔ اس دن بھی ان دونوں کو ایک سائٹ پر پہنچنا تھا۔ گھر سے نکلتے ہی اس نے شیراز کا نمبر ملا لیا۔ وہ مسلسل بن جا رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اس کے گھر کی طرف آ گئی۔ اس دن فاقیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سو وہ گھر پر ہی تھی۔ دروازہ اسی نے کھولا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر بوکھلا سی گئیں۔ آپ یہاں؟ فاقیہ نے خود پر تھوڑا قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ شیراز کہاں ہے؟ رشا نے بس ایک نظر اس کا جائزہ لیا تھا۔ جی اندر ہے، آئیں، فاقیہ نے کہا۔ نہیں شکریہ، بھیج دو اسے، ہمیں دیر ہو رہی ہے، وہ اسے کہتے ہوئے واپس مڑ گئی۔ دل عجیب سا ہو گیا تھا۔ 2 منٹ بعد ہی شیراز باہر نکل آیا۔ یہ پہلی اور آخری بار تھا کہ میں نے پورے 2 منٹ انتظار کیا ہے تمہارا، آئندہ نہیں کروں گی۔ وہ بھڑک کر اس پر چڑھ دوڑی۔ سوری یار، سیل آف ہو گیا تھا اور جلدی آنکھ نہیں کھلی۔ شیراز نے کہا، کیوں؟ ساری رات سوئے نہیں کیا؟ اس نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ شیراز نے پوچھا۔ میرا تم پر شک کرنا واجب ہے مسٹر شیراز، کیونکہ تم ایک دفعہ مجھے دھوکہ دے چکے ہو پہلے ہی۔ وہ تڑکی تھی۔ تم گھر کیوں آئیں؟ شیراز نے بات گھمانا چاہی۔ تمہاری بیوی سے ملنے، رشا نے کہا۔ بس مل لیا؟ شیراز اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تمہاری بیوی فارس انٹرپرائزز میں کام کرتی ہے؟ اس نے پوچھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ شیراز چونک گیا۔ کل میں نے اسے دیکھا تھا وہاں، رشا نے کہا۔ تم وہاں پر کیا کرنے گئی تھی؟ شیراز مسلسل اسی کو دیکھ رہا تھا۔ فارس انٹرپرائزز کا چیئر پرسن میرا فرسٹ کزن ہے، حنان فارس، رشا نے بڑی رعونت سے کہا۔ شیراز بس سر ہلا کر رہ گیا۔ مس فاقیہ نہیں آئیں آج؟ اس نے فاقیہ کی حاضری والا کھانہ خالی دیکھ کر اپنے چپڑاسی کو بلایا تھا۔ آئی ہوئی ہیں صاحب جی، چپڑاسی نے کہا۔ تو حاضری کیوں نہیں لگائی؟ اس نے پھر پوچھا۔ پتہ نہیں صاحب جی، صبح سے اپنی کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کیے بیٹھی ہیں، 10 ڈبے جوس کے منگوا کر پی چکی ہیں، چپڑاسی نے بتایا۔ جوس کے ڈبے؟ وہ حیرانگی سے بولا۔ جی صاحب جی، جب پریشان ہوتی ہیں تو جوس ہی منگوا کر پیے جاتی ہیں، ٹھنڈا ٹھار مینگو جوس، چپڑاسی نے کہا۔ بھیجو انہیں۔ چپڑاسی سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اندر چلی آئی۔ حاضری کیوں نہیں لگائی ابھی تک؟ اس نے ایک نظر اس کے بیزار چہرے کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ذہن میں نہیں رہا سر، وہ سر جھکا کر بولی۔ حنان نے رجسٹر اس کے سامنے کر دیا۔ فاقیہ نے چپ چاپ سائن کر دیے۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے پھر پوچھا تھا۔ جی، فاقیہ نے سر اس بات میں ہلا دیا، لیکن اس کے چہرے سے واضح ہو رہا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس کی طبیعت پچھلے کئی دنوں سے ایسی ہی تھی، مزمحل، بیزار سی۔ کئی دفعہ شیراز کو ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہہ چکی تھی، لیکن وہ ٹال مٹول کر جاتا تھا۔ رشا کو حاتم منزل گئے 1 ماہ سے زیادہ ہو چکا تھا۔ اس دوران اس کی بس حنان سے 1-2 بار ہی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ تو ہر لحاظ سے ٹینشن فری ہو چکی تھی۔ نہ تو اب اس کے سر پر حاتم قریشی کی شادی والی تلوار لٹک رہی تھی اور نہ ہی حنان کی طرف سے کوئی روک ٹوک تھی۔ خلا کا مطالبہ تو وہ تب کرتی جب حنان کی طرف سے کوئی پیش رفت دکھائی دیتی، لیکن فی الحال تو راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ وہ اور شیراز پوری طرح ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے تھے۔ آئے دن کہیں نہ کہیں لنچ، ڈنر، ڈانس پارٹیز، لانگ ڈرائیوز، فارن ٹورز۔ اس دن بھی وہ اپنے آفس سے نکلنے لگا تھا جب اسے حاتم قریشی کی کال آ گئی۔ ابھی مل سکتے ہو برخوردار؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ خیریت تو ہے ماموں جان؟ وہ پریشان ہو گیا۔
हाँ, देखने में तो खैरियत ही है, आ जाओ घर पर, उन्होंने कहा। वो घर जाने की बजाय सीधा हातिम मंजिली चला आया। हातिम कुरैशी उसे टीवी लाउंज में ही मिल गए थे। रेशा से कोई झगड़ा हुआ है तुम्हारा? उन्होंने पूछा। नौरीन ने उसके आगे चाय का कप रखा था। नहीं तो, उसे हैरानगी हुई। तो फिर वो 2 माह से यहाँ क्यों रह रही है? उन्होंने इस्तफसार किया। मामू जान, उसने कहा था कि उसका दिल नहीं लगता वहाँ, उसे आप दोनों के साथ रहना है। तो मैंने कहा ठीक है। उसने जल्दी से बात बनाई। आज मुसलसल 20वां दिन है, हमें उसकी शक्ल देखे। सुबह वो कब उठती है कोई पता नहीं, रात को कब वापस आती है कोई पता नहीं, कब वो बाहर के दौरों पर निकल जाती है कोई खबर नहीं। इस तरह दिल लगा रही है वो हमारा और अपना। वो कहते चले गए। हन्नान बिल्कुल खामोश था। ये देखो, इस तरह दिल लगा रही है वो हम सब का। उन्होंने एक मैगजीन उसके सामने फेंका। वो रिशा का कोई फॉरेन शूट था। रिशा और शिराज एक दूसरे के इंतहाई करीब। वो किसी परफ्यूम कंपनी का शूट था। शिराज बिना शर्ट के रिशा को अपनी बाजुओं में लिए खड़ा था और रिशा उसके सीने से लगी उस परफ्यूम की खुशबू महसूस कर रही थी। हन्नान उनसे नजरें भी ना मिला सका। कौन है ये लड़का हन्नान? उन्होंने सवाल किया। वो जवाब ना दे पाया। आज तक तुम्हारे इतने करीब आई है कभी वो? तुम्हारे साथ हैं उसकी इस कदर कुर्बतें? तुम्हारे साथ हैं इस कदर बेबाकियां? तुम्हारे साथ वो एक दफ़ा भी कभी गई है फॉरेन टूर पर? वो पूछते जा रहे थे और हन्नान चुप था। मैं अपनी गलती मानता हूँ हन्नान, वो मेरी एक ही बेटी थी। मैं आंखें बंद करके उसकी हर जायज़ नाजायज़ बात पूरी करता चला गया। नतीजा ये हुआ कि वो मेरे सर पर बैठ गई। वो मेरी एक भी नहीं सुनती हन्नान। मैंने सिर्फ इसलिए उसे शादी के बंधन में बांधा कि शायद वो अपने शोहर से थोड़ा डर कर रहेगी, शायद वो उसकी थोड़ी हया कर लेगी। लेकिन मुझे लगता है कि वो तुम्हारे भी सर पर बैठ गई है, या फिर तुमने अपनी मर्जी से उसे अपने सर पर बिठा लिया है। वो बोले। मैंने बस उसकी खुशी का एहतराम किया था मामू जान, वो धीरे से बोला। वो मुझे जितना बेवकूफ़ समझती है ना, मैं इतना हूँ नहीं। हन्नान, मुझे क्या पता नहीं है कि उसने तुमसे शादी क्यों की थी? 20 सालों से तो उसे तुम कभी नज़र नहीं आए, और अब एकदम, डैड मुझे हन्नान से ही शादी करनी है। उसे बस मुझे मुतमईन करना था किसी तरह, और उसने कर दिया। शोहर के रूप में उसे मट्टी का एक माधु चाहिए था जो उसे मिल गया। वो सच ही तो कह रहे थे। लेकिन क्या तुम भी उसकी तरह मुझे बेवकूफ़ ही समझते हो हन्नान? क्या मैंने यूं ही आंखें बंद करके उसकी ख्वाहिश पर उसे तुम्हें सौंप दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने सोचा था कि तुम उसे एक शोहर की तरह डील करोगे, एक दोस्त या एक आशिक की तरह नहीं। उन्होंने कहा। मैं उस पर ज़बरदस्ती कैसे करूं मामू जान? वो बेबस हो गया था। क्या मतलब है कैसे करूं? कैसे करते हैं शोहर बीवियों के साथ ज़बरदस्ती? कैसे लाते हैं बिगड़ी हुई बीवियों को राह रास्त पर? उन्हें गुस्सा आ गया। वो आपका खून है मामू जान, बाद में आपको ही गिला होगा। उसने कहा। मुझे तब गिला होगा हन्नान जब वो यहाँ रहेगी और ये सब करती रहेगी। उसका शोहर उसे अपने साथ लेकर जाए, वो उसके साथ रहे और उसकी इजाज़त से ये सब करे, तो मुझे कोई गिला नहीं। उन्होंने कहा तो हन्नान खामोश हो गया। उस दिन भी उसकी तबीयत बहुत निढाल थी। सुबह से 2 बार कह कर चुकी थी वो। बड़ी मिन्नत समाजत करके उसने शिराज से 1 घंटे का वक्त लिया था। मैं तुम्हें ऑफिस से ही पिक कर लूँगा, 1-2 काम निपटा लूँ। वो उसे यकीन दहानी करवा कर निकल गया था। फाकिहा उसके आने की उम्मीद पर ऑफिस चली आई। अभी पूरी तरह कुर्सी पर बैठी भी नहीं थी कि हन्नान का बुलावा आ गया। वो थके थके कदमों से उसके ऑफिस आई। हन्नान कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर आंखें बंद किए बैठा था। जी सर, उसने कहा। फाकिहा, 11 बजे एक मीटिंग है, ये उसका एजेंडा है। प्लीज़ इस मीटिंग के तमाम लवाजमात तैयार करके मेरी टेबल पर पहुंचा दें। वो उसे खुद से भी ज़्यादा थका हुआ लगा था। ओके सर, धीमे से लहजे में कहती वो बाहर आ गई। 11 बजे तक उसने मीटिंग से मुतालिक तमाम फाइलें और डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दिए। इस दौरान उसने शिराज को कोई 50 दफ़ा कॉल की, लेकिन जवाब निदार। 11 बजे जब वो ये सब कुछ लेकर उसके ऑफिस पहुंची तो एक नया हुक्म सादिर हुआ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं मिस फाकिहा, आज की मीटिंग में आप मेरी जगह ब्रीफ कर दीजिएगा। वो गाड़ी की चाबी उठाते हुए उठ खड़ा हुआ। सर, मेरी तबीयत कुछ। वो होले से मिनमिनाई। क्या? हन्नान को उसकी बात समझ नहीं आई। कुछ नहीं सर। वो चुप कर गई। 10 मिनट में वो दोनों हॉल पहुंच गए थे। वहां जाकर हन्नान खुद तो कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर अपनी इज्जत का मातम मनाने में मसरूफ हो गया, जबकि फाकिहा की शामत आ गई। अलिफ से लेकर ये तक सारी ब्रीफिंग उसी ने दी, खुदा खुदा करके 2 घंटे की मीटिंग अटेंड करके। जब वो बाहर निकली तो आंखों के सामने बार बार अंधेरा आ रहा था।
शिराज का सेल ही बंद हो गया था। वो बार बार अपनी आंखों में आया पानी साफ कर रही थी। पार्किंग एरिया में खड़ी हन्नान की गाड़ी तक आते आते उसकी बस हो गई। हन्नान ने भी अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला ही था गाड़ी का कि वो लहरा कर ज़ोरदार आवाज़ से उसकी गाड़ी के बोनट पर गिर गई। फाकिहा, हन्नान के तोते उड़ गए थे। फाकिहा, क्या हुआ? वो पूरी तरह होशो खिरत से बेगाना हो चुकी थी। हन्नान ने उसे बाजुओं में उठाकर गाड़ी में डाला और हॉस्पिटल ले आया। उसका बीपी खतरनाक हद तक लो हो गया था। लेडी डॉक्टर ने उसे ड्रिप्स लगाईं, कुछ टेस्ट किए और फिर मुस्कुराते हुए हन्नान की तरफ मुड़ी। वो उसके ऐन सामने कुर्सी पर बैठा था। मुबारक हो मिस्टर हन्नान, आपकी मिसेज उम्मीद से हैं। उसे वो न जाने क्या समझी। डॉक्टर, ये मेरी वाइफ नहीं सेक्रेटरी हैं। उसने जल्दी से वजाहत दी। ओह आई एम सॉरी, मुझे लगा शायद। डॉक्टर थोड़ी शर्मिंदा हुई। बहरहाल मैंने ये मेडिसिन्स लिख दी हैं, इन्हें बाकायदगी से इस्तेमाल करवाइएगा। तकरीबन 20 मिनट बाद वो वहाँ से फारिग हो गए। हन्नान ने उसकी नाना के बावजूद उसे सारी मेडिसिन्स खरीद दी थी। पूरा रास्ता वो कुछ नहीं बोली। उसे हन्नान से सख्त शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तुम मुझे बता नहीं सकती थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? आखिर हन्नान ने ही बात शुरू की। मैंने आपको बताया था, पर आपने शायद सुना ही नहीं। उसने सर झुका लिया। दरअसल मैंने आज शिराज के साथ चेकअप के लिए जाना था, लेकिन वो आए ही नहीं। फिर आपने मीटिंग का कह दिया तो इसलिए। वो एक नज़र उसे देखकर बोली थी, अभी मेरे सर चढ़ जाती तुम। हन्नान मुस्कुराते हुए बोला, सुबह से क्या खाया है? उसने पूछा। जूस पिया था, वो धीरे से बोली। हन्नान ने एक नज़र उसे देखते हुए गाड़ी एक रेस्टोरेंट के आगे रोक दी। आओ कुछ खा लेते हैं, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। फाकिहा के इनकार के बावजूद वो उसे ज़बरदस्ती अंदर ले आया। क्या खाओगी? उसने पूछा। जो मर्जी मंगवा लें, उसने माथे पर आया पसीना साफ करते हुए कहा। हन्नान ऑर्डर देने में मसरूफ़ हो गया और वो इधर उधर देखने में। अचानक ही उसकी नज़र हन्नान की पुश्त पर मौजूद टेबल की तरफ गई। वो शिराज ही था, उसकी तरफ रुख किए बैठा था और साथ उसने एक नज़र हन्नान को देखा। वो अपने सेल में खोया हुआ था। साथ वही थी, मशहूर कमर्शियल एंड फैशन मॉडल रिशा हातिम। वो दोनों हंस रहे थे, इंतहाई खुशगवार मूड में बातें कर रहे थे। उसने यूं ही शिराज का नंबर मिला लिया। बेल जा रही थी। शिराज ने एक नज़र सेल की तरफ देखते हुए उसे ऑफ कर दिया। फाकिहा की आंखों में पानी भर आया। बस ये वक़्त थी उसकी, बस इतनी सी। उसे टिश्यू से आंखें साफ करते देख हन्नान एकदम चौंक गया। क्या हुआ? वो परेशानी से बोला। कुछ नहीं सर, बस मुझे घर जल्दी छोड़ दें प्लीज़। वो खुद पर काबू पाते बोली। हाँ, बस खाना खाकर चलते हैं। हन्नान उसके लिए काफ़ी फ़िक्रमंद हुआ था। कुछ ही देर में रिशा और शिराज वहाँ से उठकर चले गए। उसने कुर्सी की पोस्ट से टेक लगाते हुए रिशा को कॉल की। सद शुक्र के उसने कॉल रिसीव कर ली। बोलो हन्नान। वह आवाज़ से ही बहुत मसरूफ़ लग रही थी। घर कब आना है मिसेस हन्नान फारिस? उसने पूछा। एक लम्हे को तो वो बोल ही ना सकी। क्या मतलब? उसने पूछा। मैंने कहा कि घर कब आना है। हन्नान ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। क्यों? तुमने क्या करना है मुझे घर लाकर? रिशा ने कहा। क्या मतलब क्या करना है? बीवियां शादी के बाद अपने शोहरों के घर में ही रहती हैं ना? हन्नान ने कहा। हन्नान, तुम कहना क्या चाहते हो? वो तंग आ गई थी। बस इतना कि घर वापस आ जाओ। तुम्हें डैड ने कुछ कहा है? वो तार गई थी। जिसने भी कहा हो, तुम बस वापस आओ। तुम्हें जो करना है यहाँ रहकर करो। हन्नान ने कहा। हन्नान, हमने सिर्फ एक डील की थी। हमारा रिश्ता सिर्फ एक कागजी रिश्ता है, समझे तुम? उसे गुस्सा आ गया। ठीक है, फिर आज शाम तक ये बात मामू जान को खुद ही समझा दो, वरना मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। हन्नान ने ज़रा सरजनी से अंदाज में कहते हुए कॉल काट दी थी। शिराज ने नया घर खरीद लिया था। कुछ ही दिनों में वो सारे मामलात तय करके रुकैया और फाकिहा दोनों को वहाँ ले आया था। वहाँ से फाकिहा को फारिस इंटरप्राइजेज और दूर हो गई थी। उस दिन रात को खिलाफ मामूल वो घर पर ही था। फाकिहा उसे चाय का कप पकड़ाते हुए उसके पास ही बैठ गई। वो पूरी तरह अपने सेल में खोया हुआ था। शिराज, फाकिहा ने धीरे से उसका बाजू हिलाया। हाँ, शिराज ने सेल पर नज़रें हटाए बगैर कहा था। शिराज, मैं जॉब छोड़ दूँ? उसके कहते ही वो एकदम चौंक गया। क्यों? उसने पूछा। यहाँ से कंपनी बहुत दूर पड़ती है मुझे, सफ़र ज़्यादा हो गया है और ऊपर से प्रेगनेंसी, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। अब तो माशाल्लाह आपके पास ढेरों ऑफ़र्स हैं, नया घर भी ले लिया है। मैं अगर अब जॉब ना भी करूँ तो। शिराज ने उसकी पूरी बात भी ना सुनी। देखो फाकिहा, मुझे बस ये बता दो कि मैं अपने काम के लवाजमात का खर्चा उठाऊँ या तुम्हारा? उसने कहा। फाकिहा चुप रह गई।
तुम ने ही मुझसे वादा किया था ना कि कभी मेरे पैर का कांटा नहीं बनोगी, तुम अपना और अपने घर वालों का खर्चा खुद उठा लोगी। शिराज ने कहा, तो उठा नहीं रही हूँ मैं क्या शिराज, हालत तो देखें इस वक्त मेरी। वो बेबसी से बोली। उसका तीसरा महीना चल रहा था। तबीयत हर वक्त बोझल और निढाल होती रहती थी। फाकिहा यार, मैंने अभी अभी नया घर खरीदा है, अभी तो उसके सारे पैसे भी नहीं अदा किए। तुम प्लीज़ अभी जॉब मत छोड़ो, कुछ अरसा और मेरा साथ दे दो। शिराज ने उसके दोनों हाथ थाम लिए। फाकिहा बस एक नज़र उसके चेहरे को ही देख कर रह गई थी।